ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਕਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 13 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯਾਨੀ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਸ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਆਰਟਸ, ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा ने। और तुहानूं दस दईए कि 11 जुलाई ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੁੰਚਕਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਤ 6.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਤੇ 9500 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6500 ਕਿਲੋ ਵਜਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। अवलोकन भी कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र का। और ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ CPWD ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਵਨਿਊ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। 487.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪੂਰ ਜੀ ਪਾਲੋਨਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੰਚਕਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ माता के प्रधानमंत्री महान नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, उसका आज अनावरण किया गया है, उसे यहां स्थापित किया गया है। Elegant in its simplicity, harboring under it the statue of one of the greatest leaders of India, Netaji Subhash Chandra Bose, who gave up a life of comfort, who gave up a bright career to jump headlong into fighting for freedom, passion, resolve, and the great ability to inspire young people. जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया वैसे वैसे यहां की खूबसूरती और निखरती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत मां के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने बड़े गर्व के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था कि वे स्वतंत्रता की भीख नहीं लेंगे बल्कि इसे हासिल करेंगे। नेताजी ने स्वाधीन भारत का भरोसा दिलाया था। और यहां के ये फव्वारे अपनी भव्यता खुद दर्शा रहे हैं। इंडिया गेट पर दमकते हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग। So ever since we arrived here earlier this evening, there were a multitude of people wanting to get into the venue, all very excited, probably also looking forward to the time as to be one of the first people to walk on Kartavya Path. The Prime Minister now has arrived at the dais. हर काम देश के नाम।
सेंट्रल विस्टा आजाद भारत की विशाल परियोजना, जिसे देश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में परिकल्पित किया गया, एक ऐसा भागीरथ प्रयास जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप अति आधुनिक एवं भविष्य उन्मुखी ढांचा प्रदान करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या के दिव्य मंत्रोच्चारण के बीच सभी धर्मगुरुओं की उपस्थिति में जिस महाप्रयाण का आगाज हुआ, आज उसका बेहद अहम पड़ाव भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी एक नए गौरवशाली परिवेश में इतिहास पुरुष नेताजी सुभाष की विशाल प्रतिमा से अलंकृत सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उत्सुक है देश के इतिहास में कर्तव्य पथ का नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए। प्रतीक शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन का, मां भारती के सपूतों के सामूहिक पुरुषार्थ का, गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह आजाद होते आत्मनिर्भर भारत की संकल्प सिद्धि का ऐसा स्वावलंबन जिसकी आत्मा हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता में भी निहित है। देवी और सज्जनों, समय है स्वागत संबोधन का। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी फॉर द वेलकम एड्रेस प्लीज। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, दिल्ली के मान्य नागरिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुखगण व अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य पथ के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, सशक्त नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप देश के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व की ये परियोजना, जिसकी कल्पना तक किसी सरकार ने 70 साल में नहीं की थी, वे आज साकार होने को है। विश्व के सबसे विशालतम, पुराने और जीवंत डेमोक्रेसी भारत के पूरे गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उसको 20वीं सदी और कॉलोनियल युग से निकालकर 21वीं सदी, जो भारत की सदी कही जा रही है, लाने का और सक्षम बनाने का ये प्रोजेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी और अत्यंत आवश्यक प्रोजेक्ट के पहले चरण में कर्तव्य पथ का आज उद्घाटन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ का नव भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली का हृदय है। इसका विश्व स्तरीय रूप से सृजन करना हमारी आकांक्षा ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2022 को लाल किला से देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2047 तक पंचप्रण का आह्वान किया था। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। विकसित भारत का बड़ा संकल्प अपने अंदर गुलामी का एक भी अंश नहीं रहने देना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें एकता और एकजुटता के साथ रहना है और प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज कर्तव्य पथ के शुभ आरंभ के समय ऐसा लग रहा है कि 130 करोड़ भारतवासियों के अमृतकाल का सपना साकार करने का भव्य पथ हमारे सामने खुल रहा है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का निर्णय इस बात की याद दिलाएगा
कि लोक सेवा का मूल सार जनता पर राज करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है।